इसमें कि आपके हो गए काइनेटिक ऑपरेशन जिसमें कि आप लड़ मर रहे हो, जिसमें ठीक है। आपके फोर्सेस इन्वॉल्व है, आपका एंगेजमेंट ऑफ मतलब लीथल फोर्सेस इन्वॉल्व, काइनेटिक ऑपरेशन हो गया। ठीक है। एक आपका विच इज अ पार्ट ऑफ डायनेमिक ऑपरेशन, ओके। कि जो कभी भी चेंज हो सकता है, हाँ, अब मैं इट समझा, इज ठीक है। डायनेमिक, है ना। तो फ्यू ऑपरेशंस विच आर नॉट काइनेटिक। काइनेटिक और जहाँ पे फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पे भी हम जाते हैं। वहाँ पे क्योंकि इंडियन आर्मी का ऐसा मैंडेट नहीं कि हम ओवर द सीज जाके हम कहीं वहाँ पे मारधाड़ करके आ गए, बहुत रियल है, मतलब बहुत रेयर है कि हम ऐसे करें आउट ऑफ द बॉर्डर्स। तो लेकिन हमारा काम होता है रेकी करके आओ, मिल के आओ, लेके आओ, है ना, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो या आई वाज पार्ट ऑफ कपल ऑफ मिशंस जहाँ पे आई वाज पार्ट ऑफ द रेकी मिशन। इन केस समथिंग गोज रॉन्ग इन दैट कंट्री, हाउ टू गो, हाउ टू कम बैक। कोई कंट्री गए आप? आई हैव बीन टू 4 countries, so can I name them? ये आप बताओ, मतलब you're fine if you fine with naming it, सोच लो। Okay, I will cover it. It's okay. So I've been to एक मिनट, countries. we'll take a cut here. हाँ, हाँ, you want to name it or you don't want to name it? I will name the region. जैसे कंट्री एक्स। हाँ, I will नहीं because हाँ ठीक है, country XY, ठीक है, right. तो ये कट करके यहाँ से लेंगे, ठीक है। I've been to country ABCD. I can say ABCD countries. A is a land country. BCD are mostly island countries. Okay. So most of the focus is towards south. When I was in my unit, so most of the focus was towards the island countries. So we're part of the recce missions, completely undercover. You don't carry your identity, you don't go official. So, yeah, and the country which was land country, there I went as a with a backstory or maybe a false story to deliver something to that part of the nation. So we do such operations like that, and since we are involved into strategic operations, we get such operations from the topmost hierarchy of the organization, that is beyond even army. So Is there something beyond army that works? of course, army is not government. But there is a layer between government and between army, there is Yes. bureaucracy. Yes. हाँ, तो वो Yes. bureaucrats जो हैं, those are not army people. No. But how much do they control army? All the policies, major decisions, procurements, everything goes by their sign. We can project up to some extent. That file ultimately goes to a bureaucrat who will give the signature on that. Okay. Yeah. All our policies, everything are not signed by a ranking officer. They are signed by a bureaucrat, under secretary, XYZ. So yeah, we are instruments, 100%. Even our procurement is not completely our baby. Small procurements, yes, we can do that. But if you say for like Indian Army complete procurement per se, we don't have that power. ऐसा कभी हुआ है आपके कोई ऑपरेशन के अंदर मतलब you got in a physical contact proper, not guns के साथ, हाँ, but physical arm, non-armed, sorry. me like personally, I got opportunity in such opportunity. You call this an opportunity? Yeah, that was a good opportunity because whenever such operation comes, they the top ranking officers or the generals, we will say, they choose the best of them, and we are someone, we are like total deniability factor. We work on total deniability factor कि यार ठीक है, हम तो थे ही नहीं वहाँ पे, because we don't have any area. Today I am here, tomorrow I can be somewhere else. So nobody can quote, nobody can do that. So such operations, we call that black operations or pseudo operations. We get those operations in which one of the operation we have to capture 2 terrorists alive for the follow-on operation after their interrogation. So that was one good operation I will remember throughout my life, because that was life and death situation. My team was completely covert, no backing, nobody knew that we are there.
ऐसा कुछ पता ही नहीं था किसी को? किसी को पता नहीं था, ओनली टॉप बॉस, मी एंड वन मोर ऑफिसर, बिकॉज ही वॉज कंट्रोलिंग द intelligence flow of that operation. Only 3 of us were aware, and my team, of course. One day, first day, the operation we couldn't pull that operation because of the military presence around those 2 terrorists. और बाकी जो गेम खेलना था वो तो बड़ा गेम था, इनको वहां तक लाना कैसे है, उनको ल्योर कैसे करना है, वो एक अलग से गेम था। वो बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी क्या बोल सकते हो उसको, बहुत बड़ा प्लान था कि उनको लाना, हाँ, कि उनको उनके अगेंस्ट ही साजिश थी कि इनको कैसे लाना है करके ना। We'll lure them by telling them that you will get weapons, big weapons, और वैसे करके लाना था। और एक दिन एक इंटेलिजेंस ऑफिसर बहुत दिनों से काम कर रहा था, बट ही वॉज नॉट रेडी टू, उसका काम इंटेलिजेंस क्रिएट करना और घुमाना है, उसका काम वो नहीं है जो हम कर सकते थे या हमने जो करना था। तो ही वॉज पार्ट ऑफ दैट ऑपरेशन, एंड पहले दिन तो हो नहीं पाया क्योंकि उसने फौज देखी और भाग क्या गए, मतलब रफा दफा हो गए। अगले दिन सेम ऑपरेशन, सेम जगह पे, दूसरे एंगल से ट्राई किया, दूसरे अप्रोच से ट्राई किया, वहाँ पे 2 बंदे उठाए हमने। और बंदे उठाना इतना आसान नहीं होता। उस दिन समझा कि मूवी में किडनैपिंग बहुत आसान दिखाते हैं, इतना आसान नहीं होता। बंदा जब रजिस्ट करता है ना भाई साहब, तो उसको पता है कि वो टेररिस्ट है और लोग उसको उठा के लेके जा रहे हैं, वो बंदा जान दे देता है अपनी, वो गाड़ी में नहीं बैठ। और ये करने के बाद सारे लोग आ जाते हैं वहाँ पे, सारे लोग आ गए, बैस्टर्स, उनको लगा हम टेररिस्ट हैं और हम इनोसेंट्स को लेके जा रहे हैं। और घमासान चल रही है वहाँ पे, 40-50 जैसे मॉब में चल रहा था ना। हाँ। मुझे तो अपनी याद आती थी कि यार ऐसे लिंच हो गया था। और वहाँ पे तो हॉस्टाइल क्राउड है, वहाँ पे दे विल किल यू, टैप कर देंगे एकदम नीचे से, वहाँ पे पत्थर मार देंगे सर में, दे विल नॉट, सोचेंगे नहीं, 2 बार भी नहीं सोचेंगे। और मैं और एक मेरा बडी, वो अलग घेरे में घिर गया है, मैं अलग घेरे में गिर गया हूँ। एक 5 फीट जितना मैं हूँ हाइट का छोटा सा बंदा है, घेरे में दिख भी नहीं रहा है मुझे कौन कहाँ खड़ा करके, और सारा हॉस्टाइल क्राउड है, सारा हॉस्टाइल क्राउड है। हाउ डिड यू गेट आउट ऑफ दैट? आई हैड टू फायर। अच्छा, आई हैड टू फायर बिकॉज इन मतलब नॉट एम्ड फायर, इन द एयर। हाँ। So we were carrying a small arm. We were carrying a small arm, and जब ये actually they tried to pull my weapon from my pocket. तो मैं हाथ पे ही लगा रखा था। वो भीड़ इतनी बढ़ गई, somebody snatching my hand, somebody snatching my one leg, ये वो उस टाइप का ना। मैंने बोला यार ये तो too much now. Now either you go or I go. इतना भी नहीं, मतलब now only you go, क्योंकि आप कवर्ड नहीं हो। You are nowhere. You don't have any identity. अगर कल को अगर मान लो इनकाउंटर, अगर किसी ने मान लो पुलिस भी आ गई वहां पे, तो वो तो ये सोचेंगे कि मैं तो टेररिस्ट हूँ। तो आई एम नॉट कवर्ड। मैंने बोला भाई यहाँ से निकल जाओ एक बार, यहाँ से निकलना इंपॉर्टेंट है। आई नीड स्पेस टू गेट आउट, एंड दैट अपॉर्चुनिटी वाज गिवन बाय वन क्लाउन, जिसने मेरी वेपन खींचने का ट्राई किया। मैंने बोला यार वेपन पे तो हाथ नहीं डाल सकता कोई, अगर वेपन, क्योंकि वेपन जाता तो ही कुड हैव फायर्ड आल्सो, मुझे भी फायर करता, किसी और भी फायर करता। मैंने बोला वेपन पे हाथ डाला है, नाउ आई हैव टू फायर। आई फायर्ड कपल ऑफ राउंड्स, फिर थोड़ी सी भीड़ हटी, देन आई हैव स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ दैट भीड़, स्टार्टेड रनिंग, गॉट माय बडी अलोंग विद मी। एंड द टेररिस्ट? कौन सा टेररिस्ट? वो तो हाँ, टास्क वाज कंप्लीटेड। अच्छा, वहां से निकल रहे थे उसके बाद? हाँ, उसको बैठा दिया था। हाँ। लेकिन इसको बिठाते बिठाते इतना भीड़ आ गया वहां पे, वो गाड़ी निकल गई। हाँ। बैकअप व्हीकल को लगा हम आ रहे वो हैं। 2 लोगों के साथ बैठ गए हैं, और बैकअप व्हीकल भी निकल गया। और बैकअप व्हीकल ने जब बोला कि भाई कहाँ है, बोला हमारे पास नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है क्या? बोला हमारे पास भी नहीं है। हम पीछे ही है। फिर बैकअप व्हीकल घूम के आया, देन वी गॉट रिट्रैक्टेड बाय देम, और इट वाज अमेजिंग ऑपरेशन। नाउ आई स्माइल अबाउट इट, वी लाफ अबाउट इट व्हेनेवर वी मीट इन मैस और एनीवेयर। वी कॉल दैट एज ऑप फौदा। उस टाइम पे फौदा मूवी, वो सीरीज चल रही थी नेटफ्लिक्स की। वो बहुत केओस था, बहुत ज्यादा केओस। मतलब इजराइल वाली सीरीज क्या तोड़ू सीरीज बनाते हैं यार। अच्छा था। तो वी कॉल दैट एज ऑफ फौदा, क्योंकि सच्ची में फौदा इज अ रकस और मे बी अ केओस ना, कि सब कुछ गलत हो रहा है वहाँ पे ना, तो हम उसको ऑफ फौदा ही बोलते। तो 4-5 लोग अभी भी है, तो वी नाउ वी स्माइल अबाउट इट।